समस्त भाव आत्मा જ્યારે કરે છે વર્તમાનમાં ઉદયયોગ સંયોગની અવસ્થા દરેક જીવની સામે ચાલે છે. દરેક જીવ સંયોગિક અવસ્થામાં એના ભાવ એના પરિણામ કેવા પ્રકારના હોય છે. ઉદય ભાવ સમસ્ત સંસારની અવસ્થા એનો જો સહજ સ્વીકાર ઉદય ભાવનો સ્વીકાર સ્વભાવરૂપ આત્મધર્મને પ્રાપ્ત કરવા માટે અણમોલ ઉપાય છે. જીવો હંમેશને માટે સાકાર ઉદય હોય તો પણ એકરૂપ છે, અસાકાર ઉદય હોય તો પણ એકરૂપ છે. જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાન વિના વ્યક્તિ એનાથી કદી ઉપર ઉઠી શકે નહીં. સમ્યક જ્ઞાન એ જીવનો નિજ સ્વભાવ છે. સ્વભાવ તરફનું પ્રયાણ જ્યારે વધી જાય અને સ્વભાવમાં વ્યક્તિ સ્થિર બની જાય ત્યારે બધું સમાધાન જ્ઞાનથી થઈ જાય. જ્ઞાનથી થયેલું સમાધાન એમાં કોઈ વિકલ્પ ન હોય. જ્ઞાનથી સમ્યક જ્ઞાનથી થયેલા સમાધાનમાં રાગ દ્વેષ ન હોય. જ્ઞાનથી થયેલું સમાધાન વ્યક્તિ વર્તમાનમાં સંબંધ નિજરારૂપ અવસ્થાનો અનુભવ કરી શકે. જે કંઈ સહન થાય એ જ્ઞાનથી સહન થાય છે. સમ્યક જ્ઞાનનું એવું સામર્થ્ય છે, પણ જીવ શરીરના મન બુદ્ધિના કર્મ પર જીવે છે. જ્યાં સુધી જ્ઞાનના માધ્યમ સુધી નહીં પહોંચી શકે ત્યાં સુધી ઉદયથી ઉપર ઉઠવા માટેનો શું ઉપાય? અને એ જે કાંઈ ઉપાય કરે છે એ બધા ઉપાય તો ક્ષણજીવી હોય છે, એક ક્ષણમાં બદલી જાય છે. મનનું થયેલું સમાધાન, બુદ્ધિથી થયેલું સમાધાન, શાસ્ત્રથી થયેલું સમાધાન, કોઈ વ્યક્તિએ કરેલું સમાધાન એ નિમિત્ત ન હોય ત્યાં સુધી કરીએ. નિમિત્ત આવતાની સાથે બધું સમાધાન એક ક્ષણની અંદરમાં બધું સમાપ્ત થઈ જાય. પણ જો જ્ઞાન હોય, સમ્યક જ્ઞાન જો એની પાસે એ સમ્યક જ્ઞાનની ધારા સતત એના જીવનમાં જો વહેતી હોય તો ગમે તેવા પ્રકારની અવસ્થા એની સામે ઉદયરૂપ અવસ્થા બને તો પણ વ્યક્તિ એની અંદરમાં એ નિશ્ચલ રહી શકે, એવો એ દ્રઢ બની જાય. ઉદય છે અસાતાનો, પણ ભીતરમાં સ્વરૂપની સાતાનો અનુભવ થાય. વર્તમાનમાં શુભનો એટલો ઉદય હોય, એવો ઉદય હોય જેમાં ઉદાયન રાજા કેવો શુભનો ઉદય, કેટલો શુભનો ઉદય. 363 નગરનો માલિક, 100 દેશનો સમ્રાટ, આવું બધું જ અનુકૂળ હોવા છતાં
દેવોને પણ ઈર્ષા આવે એવી એની વર્તમાન અવસ્થા, તો પણ એક વ્યક્તિ એ સમસ્ત અનુકૂળ ઉદયથી ઉપર ખરે. કેવી ચાલે? જો ઉદયથી બની શકે આટલી બધી અનુકૂળતામાં, તો આપણે પ્રતિકૂળતામાં સ્વીકાર ભાવમાં ન આવી શકે. પણ કેમ નથી આવતો? સ્વીકાર ભાવ કેમ રહેતો નથી? બોલે છે સ્વીકાર ભાવ રાખવો જોઈએ. રાખવો જોઈએ તો કોને રાખવો જોઈએ? એ શબ્દ જ એના માટે સેટ નથી થતો. રાખવો જોઈએ તો બીજા માટેનું વાક્ય છે. મારો જે ઉદય વર્તમાનમાં ચાલી રહ્યો છે એ ઉદયમાં તો મારે એનો સ્વીકાર, અને એ સ્વીકાર તો જેની પાસે સમ્યક જ્ઞાન હોય એ જ વ્યક્તિ એનો સ્વીકાર કરી શકે. અને એ સ્વીકાર થતાની સાથે એની બધી અવસ્થા ભીતરની બદલવી ન પડે, બધી જ બદલી જાય. અલગ અવસ્થાનો અનુભવ થઈ જાય. ક્ષણમાં ક્રાંતિ થાય. અને કે વર્ષો, કલાકો, દિવસો, મહિનાઓ ન લાગે. ક્ષણમાં ક્રાંતિ થાય. અને ક્રાંતિ થાય તો ભ્રાંતિ મીટી જાય. આ ભીતરની ક્રાંતિ. બહારમાં તો ઘણા ક્ષેત્રમાં ઘણા જીવો ઘણા પ્રકારની ક્રાંતિઓ કરે છે, પણ એ જ્યાં સુધી વ્યક્તિ એ ક્રાંતિનો શંખ ફૂંકતી હોય ત્યાં સુધી ચાલે. જેવી વ્યક્તિનું નદારત થઈ જાય, વ્યક્તિની ગેરહાજરી થઈ જાય, અને જે પાછું જે ક્રાંતિરૂપ લાગતું ને બધું ઠપ થઈ જાય, બધું બુઝાઈ જાય. જેમ દીપક બુઝાય ને અંધકાર સર્જાઈ જાય, એક ક્ષણ લાગે ને. જો કરંટ જતા એક ક્ષણ લાગે, કરંટ આવતા કેટલી ક્ષણો લાગે? કેવું છે? એમ જીવમાં જયારે જાગરણ આવું પ્રગટી જાય ત્યારે ક્ષણની અંદરમાં જ ક્રાંતિ થઈ જાય. અને ક્ષણમાં ક્રાંતિ થાય એ જ ક્રાંતિ એની ભ્રાંતિ મિટાવી દે, અને જીવ અંદરથી સ્વયંના સ્વભાવના સુખનો ભોગતા બની જાય. એ સુખ એવું સુખ છે કે બહારના બધા છોડવા ન પડે, સહજ છૂટી જાય. જોયા કરે કે છે બરાબર. આ ઉદયરૂપ અવસ્થા છે એ ક્ષણજીવી છે. આ જીવન પણ ક્ષણજીવી છે. બહારના જે ઉદયરૂપ અવસ્થા અનુકૂળ બધા સંયોગો છે એ પણ ક્ષણજીવી છે. એ ક્યારેક બદલી જાય રંગઢંગ, એ કંઈ કહી શકાય. હવે એ બદલાયા પેલા હું બદલી જાઉં એ કેમ નથી થતું? આમ કેમ બેઠા હતા? મળદારની ઘોડે કેમ બેઠા છો? કમર ઝૂકી જાય બેઠા એમ બેસાય? કટાર થઈને બેસો. અંદરમાં શું ચીજ છે, સ્વયંની ચીજ આપણે અનુભવી છે. ના બેસે તો કેમ જાણે બીમાર હોય, 6 મહિનાનો માણસ એમ બેસે. એ માણસ શું કામે? સાંભળવા પણ માણસ જો સજાગ ન હોય તો એની વર્તમાન અવસ્થા બને શું? તો એ અંદરમાં સાધનાની કેવી બને? સાંભળવામાં પ્રમાદ, પ્રવૃત્તિમાં પ્રમાદ, બધે પ્રમાદ. આ બેસવાની ઢંગથી બતાવે છે કે પ્રમાદ છે. જ્યાં સુધી વ્યક્તિ એની રીત ટટ્ટાર ન રહે ત્યાં સુધી વ્યક્તિ પ્રમાદ છે. આસનો જે બતાવ્યાથી શા માટે બતાવ્યા છે? પ્રમાદને, આળસને દૂર કરવા માટે. આવશ્યક સૂત્રની અંદરમાં જ્યારે માણસ પ્રતિક્રમણ કરવા બેસે ત્યારે એના બધા આસનો છે. એ શા માટે છે? એ આવશ્યક સૂત્ર માણસ બોલે છે અને એની અંદરમાં એનો ક્યાંય પ્રમાદ ના આવી જાય. પ્રમાદને દૂર કરવા માટે તો એ અનુષ્ઠાન લઈને બેઠો છે, અને અનુષ્ઠાનમાં જો પ્રમાદ આવ્યો તો આ શ્રવણ એક અનુષ્ઠાન છે. આ શ્રવણ કરવું, સાંભળવું એક અનુષ્ઠાન છે. બહુ નાનું અનુષ્ઠાન લાગે છે, પણ એની અંદરમાં કેટલો વિરાટ સમાયો છે. એ તો વ્યક્તિ જ્યારે સહી અર્થમાં સાંભળે અને સ્વયં સુધી જ્યારે પહોંચે. શ્રવણ, એ શ્રવણ શબ્દ જ એમ સજેશ કરે છે કે શ્રવણ અને શ્રાવક એક જ ધાતુના આ રૂપાંતર છે. શ્રવણથી શ્રાવક બને. શ્રાવક કેવું? શ્રવણ સાંભળવું. શ્રવણ એટલે સાંભળવું. કેવું સાંભળવું? કઈ રીતે સાંભળવું? અને આ જ ભગવતી સૂત્રમાં એક એવી ગાથા છે કે શ્રવણથી વ્યક્તિ ક્રમિક મોક્ષ માર્ગ નિર્વાણ સુધી પહોંચે. અને આમાં સમ્યક દર્શનનો પણ ટોટો છે. તો પછી નિર્વાણ તો સમ્યક દર્શન વગર તો એ કદી એ વાત તો શક્ય સંભવિત બની શકતી જ નથી. નિર્વાણની સાધના એના માટે શક્ય છે કે સમ્યક દર્શન હોય તો. શરૂઆત તો સમ્યક દર્શનથી થાય છે. તો એ જ જો માણસમાં પ્રથમ સોપાન ન હોય સાધનાનું, તો પછી એની આગળ વધવાનું એ કેમ બની શકે?
આ સમ્યક દર્શન એવી એક અદ્ભુત અનુભૂતિ છે કે વ્યક્તિ વર્તમાનમાં સમસ્ત એ જો એ પણ અનુભવ ક્યારે થાય? પ્રમાદથી ઉપર ઉઠે ત્યારે. બધામાં પ્રમાદ આવવાનો, સાંભળવામાં આવવાનો, જોવામાં આવવાનો, બધામાં આપણી સમગ્ર દિનચર્યા પ્રમાદથી જ ચાલી રહી છે. એમાં અનુષ્ઠાન તો 99% પછી લે અને પ્રમાદમાં જ. પ્રમાદને દૂર કરવા માટે અનુષ્ઠાન એને લીધું તો અનુષ્ઠાનમાં ઓર વધારે પ્રમાદમાં ચાલ્યો જાય. તમે આ લોકો આટલું બધું કરે છે, કેટલા સંપ્રદાય કેટલું બધું કરે છે, હોલસેલ લાગે, હજારો લાખોની સંખ્યામાં લોકો કરતા, તો પણ એક પણ વ્યક્તિ કેમ પહોંચી નથી શકતી? એનું પરિણામ કેમ નથી આવતું? કેમ માણસની ખ્યાલ કરતો નથી? જોતો આ સંખ્યા થાય લાખોની, હજારોની, પણ પહોંચી શકે કોણ? આ પ્રમાદથી માણસ જ્યાં સુધી બહાર ના આવે ત્યાં સુધી કામ, મારું સ્વયંનું કામ જે થવું ઘટે એ શક્ય સંભવિત નથી. તો આ પ્રમાદ માણસની અંદરમાં જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી કદી પણ સ્વરૂપ દર્શન, આત્મદર્શન, અનુભૂતિ, સાક્ષાત્કાર, આ બોધિ કદી સંભવિત નથી. તો શ્રવણ, સાંભળવું એ વર્તમાન સજેસ્ટ કરે છે. શ્રવણ વર્તમાનમાં હોય, ભૂત ભાવિમાં ન હોય. તો જે વ્યક્તિ શ્રવણ કરે છે એ નક્કી છે કે વક્તા પાસે શ્રોતા, વક્તા જે બોલે છે તો વક્તાનું એની અંદરમાં આરોપણ છે કે વક્તા પાસે શ્રોતા બેસે અને સાંભળે, શ્રવણ. તો એ સાંભળવું કઈ રીતે? સાંભળવું એક કળા છે. કેવી કળા છે? અદ્ભુત કળા છે. હવે એ કળા જો માણસને હસ્તગત થઈ જાય તો એને જરૂર શ્રવણ સાંભળતા ઘટના ઘટી જાય. કરવાની વાત તો આપ લોકોની પાસે, કારણ કે પ્રમાદ છે. પ્રમાદથી આ બધું કરવા પણ આવશે અને પ્રમાદ કરવા પણ જ બતાવે છે. પ્રમાદનું કામ જ એ છે કે કાંઈક કર એટલે પ્રમાદ. શું કરશો તમે શું કરો છો? જે કાંઈ કરતા પણ ભાવ છે અંદર, કરવું કાંઈ શું થયું? અંદરમાં જે કાંઈ કરવાપણાનો ભાવ થયો તે જ પ્રમાદ સજેસ્ટ કરે છે. તો પ્રમાદથી શરૂ થાય તો એ પ્રમાદનો ગુણાકાર થવાનો. માણસ જ્યારે અંદરમાં જાગે છે ત્યારે પ્રમાદ દૂર થાય. ભીતરનું જાગરણ છે એ દૂર. ભીતરના જાગરણ વિના આ પ્રમાદ કદી પણ એમાંથી વ્યક્તિ બહાર આવે એવી કોઈ સંભાવના નથી. તો એ શ્રવણ માન્યતાને જો સાંભળે છે, પોતાની માન્યતા, જ્ઞાનીને નહીં. આપણે વિતરાગને સાંભળ્યા છતાં કોરા કેમ રહી ગયા? આ મનુષ્ય જન્મ અત્યારે આપણને મળ્યો છે, અત્યારે અહીંયા સાંભળી છે એટલું નથી. વિતરાગ પરમાત્માને પણ આપણે એક વાર અને અનેક વાર આપણે સાંભળ્યા છે, છતાં આ જીવ કોરો કેમ રહી ગયો? એ કોરો રહેવાની અંદરમાં કારણ છે પ્રમાદ. પોતાની માન્યતાથી સાંભળે તો જ્ઞાનીને નથી સાંભળતો, એની માન્યતાને સાંભળે છે. એની માન્યતાને મજબૂત, એની માન્યતા પ્રમાણે વાત ચાલશે તો એ કહે બરોબર, એની માન્યતા પ્રમાણે વાત ન હોય તો એ કહી દે કે આમાં કાંઈ નથી. હવે શું સાંભળી દે? એને શું દર્દ બનાવી? એની પોતાની માન્યતા, એની ધારણા, એને જે ધારણા કરી છે, જે માન્યતાઓ બનાવી છે એ પ્રમાણે જો હોય તો એ કહે કે બરાબર છે. અને એમાં જો એની માન્યતા જો તૂટતી હોય તો એ કહી દે કે આમાં કાંઈ નથી, ખલાસ. તો માન્યતા વગર સાંભળો, કમ્પેર નહીં કરવાનું. થઈ શકે? સાંભળવામાં કમ્પેર નહીં કરવાનું. કેટલું કામ છે, કેવું કામ છે? જો સાંભળવા છતાં, અને શાસ્ત્ર તો કેટલી બધી વાતો કરે છે. આ શ્રવણેનાને વિનાને એ ભગવતી સૂત્ર બોલે છે. સૂત્રાધીન સૂત્રની અંદરમાં પણ આ મનુષ્ય જન્મની દુર્લભતા, શ્રવણ, જીવનની અંદરમાં બોધિનું પ્રાપ્ત થવું અને સમસ્ત શક્તિને સાધનામાં લગાવી આ 4 અંગની દુર્લભતા જે બતાવી છે, માનુષત્તમ, સુવિસદ્ધા, સંયમન, નિયવીર્ય. જો અહીંયા 4 અંગની વિશેષતા, દુર્લભતા, એની અંદરમાં પણ માનુષત્તમ, મનુષ્યત્વ, શ્રવણ, શ્રદ્ધા અને શક્તિ જે મળી છે, સમય અને શક્તિ, એમાં તું સ્વયંમાં સ્થિર થઈ જાય.
આપણી શક્તિ છે, સમય છે, સાધન છે, આપણે શેમાં લગાવીએ છીએ? શેમાં લાગ્યા છે આપણા? વર્તમાન આપણી આ બુદ્ધિ, આ સમ્યક દર્શન પામવા માટેની આ બધી વાતો છે. હવે જો વ્યક્તિ આ સાંભળે અને એવું સાંભળે તો સાંભળતા સાંભળતા એના અંદરમાં ઘટના ઘેટા વગર રહી ન શકે. તો માન્યતાની કમ્પેર, સાંભળવામાં કમ્પેર નહીં. શ્રવણ, માન્યતા નહીં, કમ્પેર નહીં, વક્તાની શૈલી અલગ અલગ હોય છે બધા. માણસ બહારની શૈલીમાં રમી જાય, એનો અવાજ સરસ હોય, બધા વ્યવસ્થિત ગોઠવેલું હોય, અને અહીં તો બીનવાનું હોય, કોઈ આમ ભાગે કોઈ આમ ભાગે, કોઈ આમ થાય કોઈ આમ થાય, તો એ માણસને કંઈક આમાં તો ડિસ્ટર્બ થાય. આમાં કઈ મજા શેમાં આવી? એસી બંધ થઈ જાય તો દુઃખ થાય ને, શેમાં મજા આવે? શિકાર થાય એટલી વાર તો શિકાર કરો. બંધ થઈ ગયું તો બરાબર, હું જોઉં મને અંદરમાં શું થાય છે. મને અંદર ગરમી લાગે છે, ગરમીથી મને શું થાય છે જો એને આપણને જોવાનો. હવે આપણે તો જોઈ લો, દોડ આમથી આમ શું થાય? આપણને કુદરત ઘણા મોકા આપે છે, પણ આપણી પ્રમાદની અવસ્થા એવી છે કે આપણે એમાં જોવા કોઈ દિવસ તૈયાર થયા જ નથી. અને જો માણસ જોવે, ગરમી લાગે, પસીનો વળે, અને થોડી વાર જો જોવે ને તો પસીનો બંધ થઈ જાય, અને જે એને ગરમી લાગતી એની જગ્યાએ એને ઠંડક લાગવા માંડે. એક જ જગ્યાએ બેઠા વ્યક્તિને કેવા શરીરના અને મનના, બુદ્ધિના તલ ઉપર અલગ અલગ અનુભવો થાય. આ અનુભવમાં વ્યક્તિ જો જાગૃત હોય તો અનુભવ જ્ઞાન કેવું પરિપક્વ બની જાય, અને વ્યક્તિનો પ્રમાદ કેટલો દૂર થાય, અને વ્યક્તિ કેવી બની જાય? માન્યતા નહીં, કમ્પેર નહીં, વક્તાની શૈલી નહીં. શૈલી ઘણા દરેક વ્યક્તિનું અભિવ્યક્તિ અલગ હોય છે. દરેક વ્યક્તિ વિતરાગ હોય ને, વિતરાગ એની પણ અભિવ્યક્તિ અલગ હોય છે. વિતરાગની અભિવ્યક્તિ એવી હોય છે, એ તો પૂર્ણ પરમાત્મા છે, એના તો અતિશયોની સીમા નથી. છતાં જીવોની અંદરમાં એની અભિવ્યક્તિ જે છે એને એ પકડી લે, અને એની અંદરમાં એ જીવ એકરૂપ થઈ જાય. તો જ્ઞાનીની અભિવ્યક્તિ બે પ્રકારની હોય છે. એક પોતે જ્યાં છે ત્યાંથી જો એ વાત કરે તો કોઈ ન સમજી શકે. એટલી ઊંચાઈ ઉપર જે છે અહીંયાથી એ વાત કરે તો કોણ સમજી શકે? લોકો ક્યાં છે? લોકોની અવસ્થા શું છે? વર્તમાન लोगों जो अवस्था, ये अवस्था को बराबर समझे. हर व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है, कैसी अवस्था चल रही है, ज्ञानी उसको जानते हैं. मननी घटघटनी અને સમયની વાત कौन जानते हैं? एक दो जीवों की नहीं, अनंत जीवों जो जगत में प्रवृत्ति निवृत्ति जो अवस्था में जीवो जी रहे हैं, वो सब अवस्था ज्ञानी को उसकी अंतरवस्था भीतर में अपने को अपना विचार क्या चलता वो मालूम नहीं. कैसी अपनी प्रमाद की अवस्था, अपना विचार वो भी अपने को महसूस नहीं होता है. जो श्वासोश्वास चलता वो भी महसूस नहीं होता है. अपना प्रमाद कैसा? स्थूल, बिल्कुल स्थूल. शरीर ने मन बुद्धि थी पर बहुत स्थूल चीज पर अपने को अनुभव में नहीं आती. तो क्या समझता? तो निश्चित है कि अपनी मूर्छित अवस्था कितनी है महसूस नहीं होने के पीछे कारण है प्रमाद. ये प्रमाद से जो व्यक्ति ऊपर उठ गया तो सचमुच व्यक्ति को एक भी श्वास देखे के बिना नहीं जाता. श्वास आ रहा है, जा रहा है, लेकिन वो इतनी सावधानी से देखता है. वो देखने में क्या होता है, उसका प्रमाद दूर होता है. आप लोग तो ऐसे मानते कि एक क्रिया है, क्रिया के पीछे क्या काम है और कैसा अपना प्रमाद दूर होता है. और ये प्रमाद से व्यक्ति जो ऊपर उठ गया तो उस समय पर व्यक्ति को मन बुद्धि के तल से ऊपर उठ जाएगा.
ये प्रमाद ही अपने को हर जगह पर, हर क्षेत्र में प्रमाद रुकावट कर रहा है। तो ये श्रवण, इतना जबरदस्त श्रवण मिला है तो भी व्यक्ति के भीतर में कोई क्रांति क्यों नहीं होती है? तो ये प्रमाद की अवस्था वो बहुत है। तो मान्यता, कंपे, वक्ता की शैली, तो ज्ञानी जो अभिव्यक्ति करते हैं वो जगत के जीवों कहां पर है, वहां से वो बोलते। तो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरी बात है, ये मेरी बात है। क्यों? हर व्यक्ति के भीतर में दुख है, प्रकार अलग है। कोई व्यक्ति जगत में ऐसी नहीं है कि जिसको दुख न हो। तो क्यों? एक ही व्यक्ति, मनुष्य की संख्या तो अरबों में है, दूसरे जीवों कितना है? अनंत अनंत। सब जीवों एकंद्री से लेकर पचंद्री तक सब जीवों के भीतर दुख है। एक दुख का कारण ज्ञानियों दिखाते हैं। ज्ञानियों हरदम दुख का कारण दिखाते हैं कि तेरी भीतर एक कारण है, एक कारण को तू मिटा दे। दुख तो कार्य है, दुख तो परिणाम है, दुख तो फल है, ये सामने आई चीज है, लेकिन व्यक्ति उसको मिटाने के लिए प्रयास कर रहा। जो व्यक्ति भीतर में जो डूबे तो व्यक्ति को ये दुखों का कारण मिट सकता है। कारण मिल गया तो कार्य खत्म, कार्य होता है। जहां तक कारण है तहां तक कार्य रहेगा। तो अभिव्यक्ति ज्ञानी की जो होती है वो मन की, घट की, समय समय, एक क्षण ऐसी नहीं है। तो एक क्षण देखो, महावीर ने कैसा दिखाया गौतम को, गौतम को माध्यम बनाकर एक बात दिखाया। दुल्हे खल्लू मानुष भवे चिर कारणम पाणिनम गाढ़ाय विभाग कमनो समयं गोयमा। एक गाथा 29 गाथा है, उसमें लास्ट शब्द समयं गोयमा। एक दफा दो दफा व्यक्ति का नाम लेकर जो बोले तो व्यक्ति को कैसा होता है? और ये गौतम इंद्रभूति गंधर्व भगवान का पट शिष्य और उसके हजारों लोगों के बीच में गौतम को सामने रखकर समयं गोयमा। और गौतम कौन थे? 4 ज्ञान, 14 पुरव और भगवान महावीर का पट शिष्य, 14,000 संतों का अग्रेसर श्रेष्ठ। तो फिर उसको संबोधन किया कि समयं गोयमा, एक समय का भी प्रमाद। और अपनी अवस्था क्या है? एक क्षण का भी प्रमाद नहीं करना। समयं गोयमा मापमाय, एक क्षण का भी प्रमाद नहीं होना। तो प्रमाद क्यों होता है? प्रमाद क्यों होता है? अपना स्वभाव है। और प्रमाद तो आश्रम का कारण है, बहुत बड़ा कारण है। तो एक व्यक्ति को 29 दफा बोला। ज्ञानी कभी एक ह्रस्व दीर्घ भी जरूरत के बिना नहीं बोलते। तो 29 दफा भगवान महावीर ने गौतम को समयं गोयमा मापमाय, एक समय का प्रमाद मत करना। क्षण की बात करते हैं, सेकंड, कलाक, मिनट, कलाक की बात नहीं, एक क्षण। तो एक क्षण जो प्रमाद रहित व्यक्ति होती है तो उसका परिणाम क्या होता? और समय चला जाता है प्रमाद में, तो उसकी अवस्था क्या होती? जो जीवन प्रमाद में ही पास होता है और प्रमाद में ही जीव जीता है तो जन्म मरण के कारण मिट नहीं सकता। जन्म, जरा और मरण, उसका जो कारण है अपनी भीतर को नहीं मिट सकता है। जो व्यक्ति ये प्रमाद से ऊपर उठता है तो जन्म, जरा, मरण का कारण जो हमने बनाया है प्रमाद से, वो प्रमाद जाते ही कारण खत्म हो जाता है और प्रमाद के अधीन होने से कारण बढ़ता है। तो अभिव्यक्ति जीवों की वर्तमान अवस्था में क्या चल रहा है, उसका दुख क्या है, उसका कारण क्या है, वो ज्ञानी दिखाते हैं और कारण मिटाने का उपाय भी दिखाते हैं। दुख है, दुख का कारण है, उसका उपाय है और उसकी मुक्ति। जो होता है कारण, उसका कार्य होता है। कारण जैसा ही कार्य होता है,
ऐसा निश्चित है, तो कारण अपने भीतर जन्म जरा मरण का जो है वो कारण जो हम मिटा सकते हैं तो अपना काम हो सकता है। वो काम क्या होता है? जन्म जरा मरण से कौन मुक्ति चाहता है? ये समस्त संसार के अनंत काल से जो चल रही है अप डाउन, उसी से मुक्त होने के लिए कौन तैयार है? जिसकी उसकी तैयारी होती है वो व्यक्ति प्रमाद से ऊपर उठ सकता है, और प्रमाद से जो ऊपर उठ गया तो उसका काम सचमुच उसका काम हो जाता है। उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता है कि ऐसे क्यों होता है, वो प्रमाद से ही सब कुछ विपरीत चल रहा है। प्रमाद से जो बाहर आ गया तो सही अर्थ में उसकी यात्रा चलेगी और व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं, अवरोध नहीं, विरोध नहीं, सबको पार कर जाएगा। प्रमाद से ही अवरोध विरोध सब कुछ अपने को लगता है। तो प्रमाद कितना बलवान कारण है। और दूसरी अभिव्यक्ति ज्ञानी की ओर स्वयं ज्ञान है, जो शिखर पर वहां से जो बोलेगा तो लोग क्या समझेगा? वहां तो शुद्ध स्वरूप है आत्मा का, पूर्ण, कुछ उसमें दूसरी बात नहीं है। तो प्योर शुद्ध निश्चय नहीं की बात जो ज्ञानी जो बोले तो व्यक्ति सुनेगा, अच्छी भी लगेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। और समझ में नहीं आएगा तो व्यक्ति प्रैक्टिकल कैसे करेगा? इसलिए ज्ञानियों ने व्यवहार मार्ग दिखाया है, और व्यवहार मार्ग का अवलंबन लेकर व्यक्ति को निश्चय तक, स्वयं तक, स्वरूप तक पहुंचना है। वो मार्ग है व्यवहार धर्म, निश्चय और व्यवहार आगे पीछे नहीं। रेल की पटरियों की मापक एक समकक्ष चलता है, और ऐसी अवस्था में व्यवहार, और व्यवहार सही व्यवहार तो वो है निश्चय को अनुरूप व्यवहार हो। वो व्यवहार है अपने बनाया हुआ, अपने माना हुआ, अपने जीवन में जो हमने कल्पना किया हुआ वो व्यवहाराभास है। वो व्यवहार से अपना काम होना कभी संभवित नहीं। निश्चय के अनुरूप है। निश्चय आत्मा का स्वरूप प्रमाद नहीं है, राग द्वेष नहीं है। वो स्वरूप को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में जागरण साक्षी भाव, ये पुरुषार्थ, इस जागरण साक्षी भाव का पुरुषार्थ से व्यक्ति की वर्तमान अवस्था इतनी अद्भुत और अपूर्व हो जाएगी कि व्यक्ति जो प्रमाद से ऊपर उठ गया तो व्यक्ति सचमुच बोधी कोई दूर की चीज नहीं है। जैसा प्रमाद से व्यक्ति ऊपर उठा, सीधी चोट लगेगी मिथ्या को। और जहां प्रमाद है वहां पर हरदम गुणाकार होता है भ्रांति का। ये भ्रांति बढ़ने से ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में चल रहा है। तो जहां जहां ऐसी अवस्थाएं चलती है भ्रांति की, वहां आत्मज्ञान होना कभी संभवित नहीं है। तो ज्ञानी पुरुषों की अभिव्यक्ति जो वहां खुद है, वहां से जो बोलेगा तो कोई समझ में नहीं आएगा। और समझ में नहीं आएगा तो समय सब व्यर्थ जाएगा। तो समय समय की बात, घट घट की, मन मन की। मन वाले जीव तो बहुत लिमिट है, संख्या था और असंख्या। मन बिना का जीव अनंत अनंत है, एक दो नहीं, अनंत अनंत। तो उसी से वो जीवों की जो भी अंतर अवस्था है वो ज्ञानी जानते हैं। देखो ज्ञान का सामर्थ्य कैसा है, ज्ञान आर पार देख लेता है। ज्ञान की जो अवस्था है उसमें कोई विकल्प नहीं। ऐसा सम्यक ज्ञान अप्रमत्त अवस्था में जीव को रहता है। तो एक अप्रमत्त प्रमाद से जो मुक्त हुआ तो व्यक्ति का कार्य होता है। इसलिए गौतम को, इंद्रभूति गंधर्व को एक दफा, दो दफा, तीन दफा व्यक्ति को तुम प्रमाद करते, तुम प्रमाद में रहते, ऐसा बोले तो व्यक्ति को कैसा लगता है? अच्छा लगे? शिकायत, मेरे ऊपर उपकार किया, मेरा प्रमाद ही है, ऐसा व्यक्ति स्वीकार कर सकता है? होता है? क्यों नहीं होता है? तुम्हारे भीतर प्रमाद चल रहा है, ऐसा एक व्यक्ति को 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा बोल दे तो व्यक्ति को कैसा लगता है? क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है? देखो ये अच्छा नहीं लगा वो भी प्रमाद, उसी से भी प्रमाद की वृद्धि और व्यक्ति के जीवन में हाँ कि ना, बस इतना तो कहां से कहां व्यक्ति पहुंच जाता है। कभी कोई भी अवस्था का शिकार नाम निशान नहीं है तो व्यक्ति को काम करना, आगे बढ़ना ये कैसे संभव है?
ये सब जो सुनना उसका जीवन में अपनी दिनचर्या में ये सब प्रैक्टिकल करना, और प्रैक्टिकल जो होगा तो सचमुच व्यक्ति क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से ऊपर उठेगा और व्यक्ति स्वस्थ होगा, शांत होगा, इतना आनंदित होगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल के बिना व्यक्ति को अनुभव होना कभी संभवित नहीं। अपना जीवन में, अपनी दिनचर्या में प्रैक्टिकल हो। जागरण देखना, मेरे मन में निमित्त आया, किसी का शब्द आया, मेरे मन में क्या होने लगा, कितना सजाग होगा। देखो प्रमाद जो सजागता से, इतना कंसंट्रेशन से जो व्यक्ति देखेगा उसका प्रमाद दूर हो जाएगा। तो ये देखते देखते उनके जीवन में साक्षी भाव इतना बलवान हो जाएगा कि व्यक्ति को इसी प्रतिकूल निमित्तों में भी व्यक्ति का जागरण, साक्षी भाव जो तेज हो गया तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। बोलो, आप ध्यान में बैठे 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल जो नहीं आया, देखने की क्षमता ये ध्यान से आती है। अपने मन में देखने की क्षमता, धीरज आती है ध्यान से। ये ध्यान में जितना व्यक्ति आगे बढ़ेगा, इतना देखना, अपनी सारी दिनचर्या में जो हो रहा है वो देखने की क्षमता, तो देखेगा तो प्रमाद से ऊपर हो जाएगा। और एक रूप हो गया तो प्रमाद का गुणाकार, जैसा प्रमाद का गुणाकार होने लगा, ऐसा मिथ्या, प्रमाद, ये सब का गुणाकार एक नहीं, एक प्रमाद बढ़ने से 5 कारण इतना मजबूत हो जाता है। और एक प्रमाद कम होने से व्यक्ति का लक्ष्य रहे, निमित्त आने पर व्यक्ति सजाग सावधान रहे, तो व्यक्ति सचमुच जल्दी से जल्दी बाहर आ जाता है। तो प्रवृत्तियों में निमित्त आएगा, दिनचर्या में निमित्त तो आएगा, निमित्त बिना का होगा ही काम। आपकी सारी दिनचर्या में कदम कदम पर निमित्त आएगा। वो निमित्त आने पर अपनी मानसिक अवस्था कैसी रहती है, कैसी होती है, वो देखा है। वो देखने का भी जो अपने को बाहर आना हो, अपने को बोधि पाना हो, अपना निजी अनुभव करना हो और दुखों का कारण मिटाना हो, तो एक कार्य करने के बिना व्यक्ति आगे बढ़े ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो एक कार्य मेरा है, मेरे से होने वाला है, तो एक कार्य खाना खाने को बैठा रहता है, खाना तो खाना पड़ता है, कोई भी हो, बच्चे से बूढ़े जीव मात्र को खाना खाना आता है। एकंद्री जीव को भी खोराक है, पचंद्री जीव को भी खोराक, खोराक का प्रकार अलग है, बाकी सभी को खोराक। ओजा 3 प्रकार का है, ओजा, रोमा और कवरा। ओजार सब जीवों को है। ओजार वो है जीव जब जो गति में जहां पर उत्पन्न होता है, वहां पर पहले समय पर जहां उत्पन्न होता है, वहां जो पुद्गल है, वो पुद्गल को जो पकड़ता है वो है ओजार। उसी से ही शरीर का निर्माण होता है। इसलिए मैं बहुत दफा बोलता हूं कि ये शरीर अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, शरीर का पुद्गल अपना नहीं है, वो दूसरों का है, उधार। अपने पास सब उधार है, रोकड़ा काम तो है आत्मा, सम्यक दर्शन। उसके बिना अपना काम होना कभी संभव नहीं है। ये शरीर दूसरों का है। तो वो जहां एकंद्री से पचंद्री तक चतुर्गति में हर जीव को ओजार होता है। नारकी को भी होता है, देवों को भी होता है, मनुष्य को भी होता है, तिर्यंचों को भी होता है। जहां उत्पन्न हुआ वहां पर जो पहले समय पर और पहला ही आहार पकड़ता है। ये शरीर छूटने पर जीव दूसरी गति में जाता है, तो उसको जाने में समय कितना, ज्यादा से ज्यादा 5 क्षण, एक आखिरी पलक, उसमें असंख्यातिक क्षण, इसी 5 क्षण में जीव दूसरी गति में जाता। या तो कोई आए जाए, घर में से बाहर आए था तो वो जीव कहां से लगा, डॉक्टर आए था तो कुछ नहीं होता है, 5 क्षण में वहां पहुंच जाए, ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाता तो 1 क्षण में, लेकिन किसी को मोड़ लेना होता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, तो 5 क्षण लगती है। तो वहां पर जैसा उत्पन्न हुआ वहां पर मैं कोई भुजी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, तो तेल में रखते हैं, तो क्या होता है आपने खाया है, देखा है,
देना बनाती है, तो आप बनाते देखें, जो देखना कितना उपयोगी है। और हर चीज में अपने को बोध होता है। पॉजिटिव थिंकिंग जिसकी पास है, हर प्रवृत्ति में, हर हालत में बोध ही बोध होता है। तो रख दिया, तेल उबलता उसमें रख दिया, क्या होता है? गरम तेल उसको पकाता है। तो कैसे? देखो, वो अंदर रखा वो चीज तेल को खींचता है, उसमें छिद्र हो जाता है, खींचता है, आर पार तेल उतर जाता है। और जल्दी निकाल दे तो बीच में कच्चा रह जाता है। खाने के समय मालूम कि तो अंदर कच्चा रह गया, जल्दी निकाला, जल्द देखो कोई भी कार्य जल्दी किया अच्छा नहीं होगा। तो वहां पर जो रखते हैं अंदर में तेल उबलता है, उसमें रख दिया तो खींचता, छिद्र देखने में आता, तेल अंदर में प्रवेश होता। ठंडा तेल में रखे तो लेकर रख दिया, ठंडा तेल है, गर्म नहीं है, जितना प्रमाण में चाहिए इतना गर्म नहीं है, रख दिया तो कच्चा ही कच्चा रहेगा, सब बिगड़ जाएगा, तेल भी बिगड़ेगा, वस्तु भी बिगड़ेगी। देखो गर्म होना चाहिए। जब गर्म होता है तब घाट होता है, जब लोहा ठंडा हो गया तो घाट नहीं होता। ऐसे जैसे वो पूरी के बुद्धि रख देते और तेल खेलते हैं, ऐसे जीव जब उत्पन्न होता है पहले क्षण पर, वहां पर जो पुद्गल है वो उसे वो बुद्धि और पूरी की तरह खींचता। अंतर्मुक्त उसका समय है। और अंतर्मुक्त का भी प्रकार है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जगन्य अंतर्मुक्त 2 समय से 9 समय, और मध्यम अंतर्मुक्त 2 समय से 47 मिनट तक, और उत्कृष्ट अंतर्मुक्त है 1 मिनट से 48 मिनट। तो ये अंतर्मुक्त में वो उसका शरीर के योग्य उद्गल खींच लेता है और पर्याप्ति हो जाती है। मनुष्य को संगनी पचंद्री जीव को 6 पर्याप्ति है। आहार पर्याप्ति देखो, पहला खुराक, जहां जाओ या पहली खुराक की व्यवस्था होती है। मुसाफरी में जाने का हुआ तो डब्बा पहला तैयार, ये डब्बा है ना, ये डब्बा है, डब्बा को डब्बा की जरूरत है। डब्बा जहां तक रहेगा तहां तक दूसरा डब्बा की जरूरत रहेगी, वो निश्चित है। तो कोई भी जगह पर जाना हो तो पहली व्यवस्था, वहां जो कोई सगा संबंधी हो उसको आगे से समाचार दे देना। ठीक गांव में ट्रेन आती हो, वहां पर सगा हो तो बोल देते हाँ टिफिन में ना जाना, इस समय पर हमारी ट्रेन आती। ऐसा आप लोग कार्यवाही है। हर जगह पर हर जीव को पहला आहार, तो पहला ओज आहार। ये ओज आहार उत्पन्न होने पर जो लिया वो ओज आहार, उसी से शरीर का निर्माण होता है, बच्चा बड़ा होता है, 9 मास उसका जन्म होता है, फिर आयु उसकी आगे चलती है 100 साल तक। वो ओज आहार थोड़ा, ये शरीर के एक कोना में वो देखो कितना स्टॉकेज है, संग्रहखोरी कितनी है। आज से नहीं है, जहां से एक यात्रा चतुर्गति रूप संसार में चल रही वहां से रखा हुआ तो काम लगेगा। किसको काम लगेगा उसको मालूम नहीं, रख दो काम लगेगा। तो एक ओज आहार 100 साल तक व्यक्ति एक शरीर के एक कोना में रख देता, और अंत समय जब आता है फिर दीपक जब बुझाने लगता है, थोड़ा तेज भी होता है, दीवार एंड पर जब तेल खुट गया तब बहुत प्रकाशित होता है, आपने तो देखा हो। ऐसे ही व्यक्ति जब एंड पर आता है तब थोड़ा और प्रकाश होता है, उसका फेस बदल जाता है। लोगों को ऐसा लगता है, डॉक्टर को भी ऐसा लगता है हाँ अभी बच जाएगा, लेकिन उसको मालूम नहीं कि अंतिम एक तेज बढ़ रहा है, लेकिन भीतर में आयु रूपी तेल फूट गया है, इसलिए वो दीपक थोड़ा तेज कर रहा। तो 100 साल तक एक ओज आहार पहले समय पर लिया, उसी से थोड़ा कोई भी जगह पर देता है। देखो वो चीज अपनी पास है, लिया है, वो भी अपने को
मालूम नहीं है, पुद्गल है, रूपी है, देखने में आता है। वो ओज आहार जीव जहां तक नहीं छोड़ता त्यहां तक ये शरीर से आत्मा अलग नहीं होती। तो आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, मलद्वार से भी ओज आहार छूट जाता है, तब ये शरीर और आत्मा दोनों अलग होते। उसके पहला कोई पहला आहार ओज आहार, दूसरा है रोम आहार, 24 घंटा चलता है एक ओज। रोम आहार 24 घंटा रोम से चलता है और व्यक्ति को बहुत इसी प्रतीक होता है, लेकिन सो गए जाने के बाद व्यक्ति उठने, जब स्वस्थ नींद आ गई तो व्यक्ति बहुत स्वस्थ हो जाता है। सोते सोते भी रोम आहार करता है, 24 घंटा रोम आहार करता है, वो खींचता है। तीसरा नंबर का आहार एक कवल आहार, 5 अंगुलियों से जो व्यक्ति कवल बनाता है वो कवल आहार है। मनुष्य और तिर्यंचों को कवल आहार है। नारकी और देव को 2 आहार है, रोम और ओज। कवल आहार नारकी देवों को नहीं है, स्थूल आहार अपने जैसा मनुष्य और तिर्यंच को कवल आहार तीनों है। तो एक कवल आहार जब व्यक्ति बैठा खाना खा रहा है, मुंह में रखा और भीतर में उसको टेस्ट आया, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या होता है? बचना है ना, ये प्रमाद। ये प्रमाद कैसा है? और जो व्यक्ति जागरण साक्षी वाला साधक है तो वो कैसा है ना, उसको ऐसा देखेगा, वस्तु खाएगा, एक चीज खाएगा, बहुत खाते हैं, प्रयोग करना, खाने को बैठा जब, तब एक चीज जो अपने को बहुत प्रिय है, टेस्टफुल बनी है, वो एक चीज को खाना और होश से खाना, इतना होश से खाना कि वो चीज खाने में 15-20 मिनट लग जाए। इतना होश से खाओ, इतना होश से जो व्यक्ति वो वस्तु को खाए तो उसकी और जो अपना लगाव है, अटैचमेंट है, छूट जाए, प्रमाद से मुक्त हो गया। वो प्रमाद से व्यक्ति को लगाव हो जाता है और जो व्यक्ति प्रमाद से ऊपर उठ जाता, वस्तु रहती है, लगाव से छूट जाता है, वो काम अपना है, उसका नाम है साधना। तो कोई भी चीज अपने बहुत अच्छी लगती है, कोई भी चीज हो, एक ही खाना, होश से खाना, इतना होश से कि खाते खाते ही व्यक्ति को ये लगाव छूट जाएगा, उसका नाम है देखना। ऐसा देखेगा तो व्यक्ति सारा जीवन, उसकी दिनचर्या बोध ही बोध होगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और जो व्यक्ति खाना तो खाएगा, बेहोशी से खा लेगा, जल्दी खा लेगा, तो क्या होगा? आहार संज्ञा बढ़ेगी, बेहोशी बढ़ेगी, प्रमाद बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। और जो होश से खाएगा तो खाना भी एक साधना हो जाएगी। एक प्रमाद ऐसी चीज है और व्यक्ति वस्तु को अधीन हो गया, स्वयं को भूल गया। जहां निमित्त को अधीन व्यक्ति होती है, स्वयं को भूल जाता है। और स्वयं को याद रखना हो तो जागरण साक्षी भाव, मां पर व्यक्ति की हरदम उसकी नजर उसकी सामने रहती है। आपकी नजर अभी घड़ियाल के सामने रहती है, लेकिन प्रवृत्ति में व्यक्ति जो जागेगा तो उसका हर हालत में, हर संयोग में लक्ष्य स्वयं की ओर, मेरे परिणाम कैसा हुआ, मेरा परिणाम ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं, लेकिन खुद का भाव देखेगा कि ये भाव क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना, उसमें नहीं जाना। जो भाव हुआ, जिस प्रकार का हुआ, वो देखना, और देखने का जो अभ्यास होगा, ये नहीं देख सकते हैं, क्यों? प्रमाद। नहीं देखने के पीछे काम ही है वो प्रमाद, और प्रमाद जहां तक रहेगा तहां तक व्यक्ति देखना संभवित नहीं है, और नहीं देखेगा तो व्यक्ति एक रूप हो जाएगा। तो एक आहार, एक कवल आहार, रोम आहार, ओज आहार, 3 ही प्रकार का आहार में व्यक्ति कवल आहार में जो सजाग सावधान बन गया तो सचमुच व्यक्ति कर्म से तो, नया कर्म से तो मुक्त होगा। पुरानी जो संज्ञा है, आहार संज्ञा, एक आहार संज्ञा खत्म होगी और अनाहारक पद का, मेरी आत्मा, देखो एक आत्मा भी खाना नहीं खाती है और एक शरीर भी नहीं खाता है। डेड बॉडी पड़ी है, कोई खाना खिलाए तो, हॉस्पिटल में हो, ट्रीटमेंट चलती है, ग्लूकोज चलता है, ऑक्सीजन चलता है, एल्टेड सब कुछ चलता है। जैसा आत्मा चल बसती है तो डॉक्टर सब मरिया
क्यों निकाल देते? इसलिए एक चेतन को रखने के लिए सब उपाय था। चेतन चल बसा सब नलिया, तो रखे तो क्या तकलीफ? जिसके लिए था काम वो तो सब निपट गया। काम किसके लिए करना? तो एकला शरीर भी नहीं खाता है, एकली आत्मा भी नहीं खाती है, ये दोनों का संयोग से काम चल रहा है। तो ये संयोग संबंध से व्यक्ति मुक्त होने के पहला ऐसा जागरण साक्षी भाव जो प्रकट हो गया तो व्यक्ति को अनारक तत्काल हो गया। आत्मा मेरी आत्मा अनारक है, ये संज्ञा मेरी चीज नहीं है, ऐसा अनुभव व्यक्ति को खाना खाते खाते हो जाएगा। तो अंतर्मुख की अवस्था में व्यक्ति को इतना काम होता है, इतना ये 100 साल तक रखता है। तो एक कषाय क्रोध मान माया लोग कितना समय से, देखो ये अपना स्वभाव ही है, तो फिर अनंत काल से उसके साथ चलता है, कंटिन्यू चलता है, एक क्षण के लिए विराम नहीं है। तो अपने उसी से मुक्त होना, वो तो शरीर जब छूट जाता है तो ओजार से मुक्त हो जाता है, लेकिन अपने तो क्रोध मान माया लोग जो अपनी भीतर चल रहा है उसी से अपने को बाहर आना है। तो एक कार्य अपना है और वर्तमान में वो कार्य होना संभवित है। जो व्यक्ति प्रमाद से ऊपर उठेगा तभी, प्रमाद जहां तक रहेगा तहां तक एक काम होना कभी ये संभवित नहीं है। तो एक ज्ञान, आत्मज्ञान, जिसका ज्ञान का काम ज्ञानस्य अन्य करोति के, ज्ञान दूसरा क्या काम करता है? ज्ञान काम करता है जानना, जो चीज जैसी है वैसी उसको जानना, उसका काम है। स्वयं ज्ञान आत्मज्ञान, आत्मा ज्ञान से भरपूर है, आत्मा छलो छल भरा है ज्ञान से। ये क्रोध मान माया लोभ से नहीं भरा है, लेकिन उसका स्वरूप वो नहीं है, उसका स्वरूप तो ज्ञान रूप है, वो ज्ञान से छलो छल भरा है। लेकिन निमित्त आने पर जो ज्ञान बाहर आएगा तो समझना कि इस भीतर में बोधी है, और जो निमित्त आने पर व्यक्ति के भीतर में प्रकृति बाहर आएगी तो समझना व्यक्ति 100% बेहोश है और अज्ञान ही बढ़ेगा, अज्ञान ही बढ़ेगा और राग बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा। एक एक चीज व्यक्ति के जीवन में कैसी कैसी कार्यवाही कर रहा है वो व्यक्ति को सचमुच मालूम हो जाएगा। तो अपना चेतन, उसका जो निज स्वरूप है, वो स्वरूप को वर्तमान में अपने को जो अनुभव करना हो तो एक कार्य वर्तमान में जागरण साक्षी भाव से जो व्यक्ति काम करेगा तो सचमुच उसकी यात्रा आगे चलेगी। चेतन परिणामी आत्मा अचेतन कर्ममा करेशु, चेतन परिणामी आत्मा कर्ममा करेशु। कर्म में क्या होता है? करने का या कर्म, करने का बंद हो गया, करने का मीनिंग कर्तापना का। देखो प्रवृत्ति रहेगी, कर्तापना, देखो प्रवृत्ति नहीं है ना तो भी कर्तापना का भाव, मानस के पास प्रवृत्ति नहीं है तो भी कर्तापना का भाव है। कर्तापना का भाव है कर्म रहेगा, करता है भोगता है, भोगता है मालिकी भाव। भीतर में जहां तक कर्तापना का भाव रहेगा तहां तक जीव को कर्म उसके लारे लारे, उसके पीछे पीछे, उसका पीछा नहीं छोड़े। हाँ, पीछा छोड़ना हो तो कर्तापना के भाव से व्यक्ति को मुक्त होना पड़ेगा। आजकल जब आपकी अनुकूलता कब आएगी? संयोग कब आएगा? कब संयोग आएगा? कर्तापना के भाव से ऊपर उठने के लिए आपको कब अनुकूलता आएगी? कब सेटिंग हुआ? ये सब सेटिंग कब होगा? ये तो चतुर्मास आ गया, सेटिंग हो गया, प्रवचन शुरू हो गया, लेकिन अपने जीवन में कर्तापना के भाव से मुक्त होने के लिए सेटिंग कब होगा? और चतुर्मास कब पूरा भी हो जाएगा? ये 5 महीना चतुर्मास तो कितनी झड़प से पास हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं रहेगा, आप तो दूसरी अवस्था व्यवस्था में रहेगा, चतुर्मास पूरा रहेगा। समय अपनी राह नहीं देखता है, कभी समय राह किसी की नहीं देखता है। व्यक्ति समय की राह देखकर बैठता है तो सचमुच व्यक्ति भूल जाता है, व्यक्ति गलत अवस्था में रहता है। जो व्यक्ति वर्तमान समय का उपयोग करने को जो सीख जाता है उसका काम हो जाता है। तो चेतन, चेतन परिणामी आत्मा अचेतन कर्ममा શું કરી શકે? ચેતન પરિણામી આત્મા, જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા, જ્ઞાનમાં જેનું રમણ, જ્ઞાનમાં સતત જેની અવસ્થા
वो आत्मा कर्म में क्या कर सकता है? कुछ नहीं होता है। ये प्रश्नार्थ है, क्या कर सकता है? कुछ नहीं हो सकता। होगा क्या? होता है क्या? कर्म होते ही इसलिए कर्तापना के भाव से कर्म होता है। कर्तापना का भाव ही प्रवृत्ति है, कर्म नहीं होगा। तो प्रवृत्ति छोड़ना आसान है, कर्तापना का भाव से मुक्त कौन हो सकता है? प्रवृत्ति छोड़ देंगे आप, लेकिन कर्तापना का भाव से मुक्त होना कैसे होता है? जब व्यक्ति प्रमाद से ऊपर उठेगा, कर्तापना के भाव से मुक्त हो जाएगा। देखो कैसा है, प्रमाद के साथ कर्तापना का, प्रमाद में ही कर्तापना का भाव है। जब मैंने 2 दिन के पहले गुणस्थान की बात किया था, तो अप्रमाद गुणस्थान, उसमें 5 प्रमाद दिखाया। मद, तो मद प्रमाद है, तो मद प्रमाद कौन मानता है? अप्रमाद अवस्था 7वां गुणस्थान में, वो भी बुद्धि पूर्वक का विचारों से ऊपर। देखो विचार और प्रमाद, विचार वही प्रमाद है, विचार वही प्रमाद है। विचार और प्रमाद अलग नहीं, विचार खुद प्रमाद है। विचार आता है इसलिए कि व्यक्ति के भीतर में बेहोशी के स्वभाव से विचार जैसा होश तेज बन गया। राग द्वेष ये कारण से विचार आता है। जो कारण से विचार आता, मन विचार नहीं करता। अपनी मान्यता 100% ऐसी कि मन विचार करता। मन तो व्यक्त करने का साधन है। आप साधन को ही पकड़ लेते, निमित्त को ही पकड़ लेते, निमित्ताधीन है। तो निमित्त भीतर में कारण है विचारों का राग द्वेष। तो राग द्वेष प्रमाद, राग द्वेष भाव कर्म है। कैसे व्यक्ति बचेगा? जो बचना हो तो जागरण साक्षी भाव, प्रमाद से ऊपर उठ जाना, तो व्यक्ति सचमुच बच जाएगा, सभी से बच जाएगा वो सब। तो प्रमाद, ये प्रमाद, मन, विषय 23, कषाय 25, मद, विषय, कषाय, निंदा और निद्रा, ये 5 प्रमाद जहां तक व्यक्ति में रहेगा तहां तक निर्विकल्प होना संभवित नहीं। आप कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये 5 प्रमाद से एक भी रहेगा, बचेगा, तहां तक व्यक्ति अप्रम। इसलिए तो बोधि दुर्लभ है। सम्यक दर्शन जीव को क्यों नहीं होता है? ये प्रमाद में जीव जीता है, और खुद के प्रमाद किस प्रकार का मेरे भीतर चल रहा है वो व्यक्ति देख नहीं पाता। और कभी ऐसी जिज्ञासा उत्कृष्ट हुई नहीं है कि जिसके पास उस समग्रपणे, समग्रता से समर्पित हो जाए। देखो समर्पित हो गया तो पहला प्रमाण टूटेगा। मद व्यक्ति समर्पित हो गया समग्रपणे, समग्रता से, सिर्फ योग से नहीं, भीतर से, तब प्रमाद पहला टूटेगा। मद कर्तापना का भाव गया। जो व्यक्ति समग्रपणे, समग्रता, शब्द बोल दिया कि समर्पण हूं, ये धोखाबाजी अपना मन की। बराबर ध्यान रखना, बराबर ख्याल रखना कि अपना मन अपने को कहां से कहां भगा देता है, तो व्यक्ति को खुद कोई खबर नहीं है। तो प्रमाद से मुक्त होना हो तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से समर्पण, समग्रपणे, समग्रता से, तो व्यक्ति का प्रमाद हो जाएगा। फिर यहाँ क्या आया? समर्पण होने के बाद क्या आया? आज्ञा। देखो ये आज्ञा का महत्व आपको नहीं है, मानते हैं, सुनते हैं नहीं, भीतर में उसकी विशेषता जहां तक हमको समझ में नहीं आई तहां तक प्रैक्टिकल कैसे होगा? और शास्त्रकार तो बोलते कि आज्ञा हो इधर, आप सुन लेते हैं, मैं बोल देता हूं, लेकिन अपने जीवन में आज्ञाओं, एक आज्ञा का स्वीकार हो गया, मद जाएगा, विषय जाएगा, कषाय जाएगा, निंदा, सब चला जाएगा। एक आज्ञा का स्वीकार हो गया, व्यक्ति के भीतर में सब प्रकार का प्रमाद से व्यक्ति ऊपर जाए, इसलिए तो साधना है। आज्ञा ही धर्म कितना छोटी सुक्ति का है और उसमें कितना रहस्य छिपाया पड़ा है। तो एक आज्ञा का पालन जो व्यक्ति के भीतर में हो गया तो व्यक्ति का प्रमाद छूट जाएगा, उसमें संशय नहीं है। इसलिए आए गौतम को 1 दफा नहीं 29 दफा बोला कि समय इन गोई मामा, तू जा किनारे पर है, अभी एक कदम उठाना है,
एक कदम उठाएगा तो शिखर पर पहुंच जाएगा, एक कदम के लिए तो रुक गया है। ये प्रमाद, उसको भी प्रमाद कैसा? तो अपने भीतर प्रमाद कितना है, कैसा है, वो भी अपने तो देखने में नहीं आता है। और व्यक्ति बोलता है मेरे में तो प्रमाद नहीं है, नहीं है तो घटना घट जाती है। जो प्रमाद नहीं है अपने भीतर, तो सामने उसका परिणाम है, फल है, वो कोई लेट थोड़ा है, एक क्षण में उसकी घटना घट जाती है। तो लेकिन व्यक्ति समग्रपणे प्रमाद से जहां तक ऊपर नहीं उठ पाता, तहां तक एक काम होना कभी संभवित नहीं है। तो एक प्रमाद कितना विस्तार है और प्रमाद कहां से कहां ले जाता है। तो ये 5 प्रकार का प्रमाद एक व्यक्ति को जीवन में छोड़ना कठिन लगता हो, तो समग्रपणे समग्रता से जिसकी ओर तुम्हारी भक्ति हो, जिसकी ओर तुम्हारी भावना हो, उसके सामने पूर्ण रूप से व्यक्ति जो समर्पित हो गया, प्रमाद खत्म। फिर तो वहां ये दाखिला उधर, वो बोले वो करना, अपने को कुछ कर, तो कर्तापना का भाव गया। आज्ञा पालने में कर्तापना का भाव टोटल चला जाएगा और व्यक्ति निश्चिंत हो गया, निष्फिक्र हो गया, सारा बोझा सौंप दिया, सब सौंप दिया। ऐसी चीज है, लेकिन ये आज्ञा, ये धर्म बहुत उसकी गहनता है। वो गहनता तक हम पहुंचने का प्रयास करें, चिंतन मनन निधिध्यासन तक पहुंचे। और क्या चीज है, उसे अकर्तापना का भाव तक ले जाने की आज्ञा में शक्ति सामर्थ्य है, वो हमारे जीवन में प्रदान करे। और व्यक्ति सचमुच जो जागेगा तो अपना काम होगा विशेष भाव के अवसर पर। नो यन्नानो सिद्धान समभाव प्रणाशनो मलांत सरिसिंह बड़मं हवै मंगलं मंगलं साहुमलं वैरी वनंदो मंगलं चलारे शरणं नव्यामि अरिहन्ता शरणं नव्यामि सिद्धा शरणं नव्यामि साहु शरणं नव्यामि केवली पनन्दं धनं शरणं नव्यामि चारमलिङ्गार्थं यासंगणये वंशाय रमामि सकलकर्म